हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। होपफुली आप सब बहुत अच्छे होंगे। बेटा मैं देवकी नंदन विश्वकर्मा, केमिस्ट्री टीचर। आज बेटा मैं अपने इस वीडियो लेक्चर में आपको बताऊंगा कि जो सीबीएसई बोर्ड ने लेटेस्ट सिलेबस डिक्लेयर करा है +1 +2 एग्ज़ाम्स के लिए, इसके अलावा जो बोर्ड एग्ज़ाम का पैटर्न, नया पैटर्न आया है, उसके बारे में आप लोगों के दिमाग में तमाम क्वेश्चंस होंगे, डाउट्स होंगे। और नया कुछ है सारा कुछ, और टाइम भी हम लोगों के पास कम है। इट्स अ जुलाई एंड मे बी अगर ये सिलेबस रिड्यूस कराया तो हम समझ सकते हैं शायद एग्ज़ाम अपने टाइम पे होंगे। तो क्या हम इतने कम टाइम में इस नए पैटर्न को फॉलो कर पाएंगे, कैसे करेंगे? पहले देखिए डियर स्टूडेंट्स, लेटेस्ट 2020 एंड 2021 +1 +2 का जो बोर्ड का क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन है अकॉर्डिंग टू सीबीएसई बोर्ड। क्वेश्चन पेपर, if we talk about chemistry, total marks is 70. Theoretical, total marks 70 and 30 marks of practicals will be. So, in the 70 marks paper is divided in two parts. First portion is the part A, second portion is the part B. पहले ऐसा नहीं होता था। पहले क्वेश्चन पेपर सिंगल आता था, उसके सेक्शंस होते थे और सेक्शन में कुछ लिटिल बिट, सम क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव्स, सम क्वेश्चंस ऑफ 1 मार्क्स, सम ऑफ 2 मार्क्स, सम ऑफ 3 मार्क्स एंड वेरी फ्यू ऑफ 5 मार्क्स। इस तरीके से डिजाइन होता था। बट अब क्वेश्चन पेपर का पैटर्न इन्होंने बिल्कुल चेंज कर दिया। 70 मार्क्स के क्वेश्चन पेपर में पार्ट ए एंड पार्ट बी बोथ डिवाइडेड इक्वली इन 35 मार्क्स एंड 35 मार्क्स। इन द फर्स्ट पार्ट ए, objective type questions will be asked, MCQ questions will be asked, assertion reasoning type questions will be asked. Assertion reasons are also a type of objective questions जिसमें assertion and reason as a statements given होते हैं और इसके basis पे 4 options given होते हैं which we have to select. MCQ, you know, these are the multiple type questions. Question have 4 options and you have to take one of the correct answer. So objective questions are of 3 types. 19 questions, objective questions of 1 marks, 5 questions of 2 marks, definitely level of question will be little bit high, 2 questions of 3 marks. These are the case based, maybe some paragraph would be given like this. So this is the objective portion which you have to attempt on the OMR sheet, or it would be a computer based test. Okay, so you have to prepare this one just like now these days students prepare for the objective exams, entrance exams like NEET, like IIT JEE or some other common entrance test of the different universities or colleges. So this portion, this is the advantage of this pattern. This portion is not only helpful for you the board to get better percentage, as well as if we prepare this portion sincerely, we will get better marks in the objective portion. जिन बच्चों ने ऑब्जेक्टिव के एग्जाम्स दे रहे हैं, नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या जेईई मेंस दे रहे हैं या किसी दूसरे कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज में एडमिशन टेस्ट के थ्रू एडमिट होना है। बट इन द सेकेंड पार्ट इट्स अ टोटली डिस्क्रिप्टिव. It's a subjective portion in which questions will be asked for the written, explanatory, conceptuals, numericals. Here are 3 sections, 4 questions of 2 marks, 4 questions of 3 marks. These are the short answer type questions, and 3 questions of 5 marks. So these are the long questions. बेटा मेरे कहने का पर्पज सिर्फ ये है कि अब तक जो ट्रेडिशनल पेपर था सीबीएसई बोर्ड का, उसका पैटर्न चेंज हुआ है. दैट मीन्स यू ऑल्सो हैव टू चेंज योर methodology of the preparation for the board exams. बेटा जैसे कि आप जानते हो मैं नियरली 16 to 17 ईयर से पढ़ा रहा हूँ. मैं अक्सर देखता था बच्चों को कि इफ स्टूडेंट टारगेटेड फॉर द बेटर परसेंटेज इन द बोर्ड एग्जाम्स, उनके दिमाग में एक माइंड सेट होता था वी हैव टू प्रिपेयर ओनली सब्जेक्टिव, that is a written based. But now pattern is totally changed. So you have to change your mindset. What? You have to change your mindset that in the question paper 2 types of questions will be asked. There is 2 portion in the question paper, one totally objective, another portion is totally subjective, and both are of equal marks. So you have to prepare for board exam. If you have to prepare for board exam, then you have to concentrate in both sections equally. Now syllabus is reduced. If we talk about for the +2 chemistry syllabus,
3 chapters are removed as per my knowledge. Principle of isolation, that is the extraction of metallurgy, and 2 chapters from the last, that is the chemistry in everyday life as well as polymers. इसके अलावा बेटा हर एक चैप्टर से कुछ ना कुछ पोर्शन रिमूव करा है. इफ यू टॉक अबाउट सॉल्यूशन चैप्टर, in the solution chapter the last portion, abnormal colligative properties, abnormal masses, want of factor based topics has been removed from the syllabus for this year. Further in future मुझे नहीं पता, but for this year only. If we talk about second chapter is electrochemistry, in the electrochemistry some commercial cells, Daniel cell, Leclanche cell, dry cells, lead storage battery, corrosion, fuel cells, ये लास्ट के जो पोर्शंस हैं, लिटिल बिट फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, ये कुछ पोर्शंस रिमूव करेंगे. तो हर चैप्टर से कुछ ना कुछ पोर्शन कट करा गया है, कुछ चैप्टर्स रिमूव करे गए, सिलेबस को थोड़ा सा रिड्यूस करा गया है. इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू. सो एनसीईआरटी को प्रॉपर फॉलो करो, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करो, जब आप असाइनमेंट्स करो, तो आप इन पोर्शंस को, ऑब्जेक्टिव पोर्शन को और सब्जेक्टिव पोर्शन को प्रॉपरली करो. ओके बेटा. सो पेपर कुछ इस तरीका से डिजाइन होगा आपका. हाँ, जो बच्चे ऑब्जेक्टिव से भागते हैं, जिनको ऑब्जेक्टिव से डर लगता है, ऑब्जेक्टिव उनको लगता है सिर्फ नीट या जेई मेंस के लिए ही करा जाता है या किसी एग्जाम के लिए ही किया जाता है, अब वो गलत होंगे. इसलिए अगर आपने बेटर परसेंटेज बनानी है, ज़्यादा मार्क्स ऑब्टेन करने हैं, तो ऑब्जेक्टिव पोर्शन को डेफिनेटली आपने सीरियसली कवर करना होगा. क्योंकि ये जो पोर्शन है, देयर इज नो रिटन वर्क, देयर इज नो कैलकुलेशन वर्क. Most of question will be answered just by reading and answer, reading and answer, reading and answer. And definitely this will be the scoring portion for you. इसमें आपकी कोई हैंडराइटिंग चेक नहीं होनी. आपको आता है, आप रफ वर्क करके आंसर निकाल के टिक कर दीजिए. हाँ, क्वेश्चंस का लेवल जेई मेंस और नीट लेवल का नहीं होगा. ये मेरे हिसाब से क्वेश्चंस कंपैरेटिवली जेई मेंस और नीट के कंपैरिजन में ईजियर होंगे. इसके अलावा बेटा एक और चीज़ है, ये जो पार्ट ए है या पार्ट बी है, ये जो क्वेश्चंस आपने 35 मार्क्स के अटेम्प्ट करने हैं, वो तो करने ही है. इनमें आपको इंटरनल चॉइस भी अवेलेबल है और नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है. इंटरनल चॉइस 33% ऑफ ईच सेक्शंस एक्स्ट्रा क्वेश्चंस विल बी गिवन. ठीक है, आपको 33% एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होंगे, उनमें से 19 क्वेश्चंस आपने ये वाले, 5 क्वेश्चंस ये वाले, 2 वाले. मतलब ऐसे समझिए कि अगर ये 2 क्वेश्चंस हैं, तो आपको कुछ इस टाइप के नियर अबाउट 3 और 4 क्वेश्चंस होंगे जिनमें से 2 करने, 8 और 9 क्वेश्चंस होंगे जिनमें से 5 करने, ऐसे ही 25 के आसपास क्वेश्चंस होंगे जिसमें 19 करने. सो इट विल बी वेरी हेल्पफुल. ठीक है, तो बेटा ये पेपर मेथोडोलॉजी फॉलो होगी. जो पोर्शन रिमूव हुआ है उस पोर्शन को आप डिलीट, रिमूव्ड पोर्शन एनसीईआरटी की cbse.nic.in साइट पे जाकर के उसको आप डाउनलोड कर लीजिए और उस पोर्शन को एनसीईआरटी में टिक कर लीजिए कि ये सब्जेक्टिव पोर्शन में नहीं आएगा. एडवांटेज इसका ये है, ठीक है, कि अगर आपने बोर्ड एग्जाम में नंबर लाने हैं तो साथ साथ आपका ऑब्जेक्टिव पोर्शन काफ़ी हद तक कवर हो जाएगा. और जो ऑब्जेक्टिव पोर्शन नहीं करते या नहीं करना चाहते उनको इसका नुकसान हो जाएगा. ठीक है, इसके लिए सिंपल ऑब्जेक्टिव चाहिए, कोई बहुत ज़्यादा लेवल अप नहीं चाहिए, लेकिन आपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की भी आदत डालनी होगी. सिर्फ सब्जेक्टिव रिटन वर्क करके आप उतने मार्क्स नहीं ला सकते. सो जस्ट डू द प्रैक्टिस फॉर बोथ टाइप ऑफ क्वेश्चंस प्रॉपरली, फॉलो एनसीईआरटी. सेम पैटर्न विल बी फॉलोड फॉर द +1, 10+1. 10+1 के लिए तो बस, वैसे तो सीबीएसई बोर्ड ने ये पैटर्न भेजा है, वहाँ पे भी कुछ उनके सिलेबस में से चैप्टर्स रिमूव हुए हैं और उन चैप्टर्स को भी कुछ, हर चैप्टर में से कुछ कंटेंट को रिमूव करा गया है. ठीक है, लेकिन +1 जैसे कि आप जानते हो कि ये होम बेस्ड एग्जाम्स होते हैं मोस्टली. सो अल्टीमेटली द पैटर्न एज वेल एज सिलेबस विल डिपेंड अपॉन योर स्कूल स्ट्रैटेजी, स्कूल सिलेबस, स्कूल मेथडोलॉजी. बट फिर भी एज पर स्टैंडर्ड मेथड ऑफ एग्जामिनेशन वहाँ पे भी 2 पार्ट्स होंगे. आपने भी इस हिसाब से प्रिपरेशन करनी चाहिए. ओके डियर स्टूडेंट्स, सो जस्ट फॉलो द पैटर्न, and if you have some doubt related with the study, related with the pattern, related with the content, related with any doubt for the CBSE board paper for the chemistry, then you can call me on this number. Okay, thank you, thanks a lot.